One of the biggest challenge in life as a parent is that you don't know why your child doesn't listen to you. ऐसा सबके साथ होता है. एक पेरेंट के रूप में you are an utter failure when it comes to the child and why he or she is not listening to you. They can ignore you very easily, especially if you are a mother. Does it resonate with you? I'm sure it is. तो ये इसकी जो सबसे पहले मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कुछ महीने पहले when my son wasn't doing great in one particular subject, and as a usual teenager he was also trying to refuse that. No, he was putting his point that नहीं वो तो अच्छा ही कर रहा है and I am not able to understand, etc etc. So but I knew it कि रिजल्ट्स बता रहे हैं, उसके एफर्ट्स जो मेरी आंखों के सामने हैं वो भी दिख रहे हैं. So I have to take a call and I have to talk to him, which is one of the very difficult things to do, as I said, because ये मैंने दूसरे पेरेंट्स से भी सुना है, because as I have talked about it, I am a coach, and also for teenagers I am coach because I interact with teenagers. I come from a very understanding position, like I know them, I understand that why they are doing what they are doing. Because ऐसा हुआ है मेरे साथ कि I also remember my own teenage years. So I understand कि एक टीनेजर का अप्रोच, आप भले उसको लेबल कुछ और दे दें, जेन जी दे दें, जेन अल्फा दे दें, जेन बीटा दे दें, थीटा दे दें, गामा दे दें, जो भी दे दें, लेकिन एक टीनेजर का एक रीजन होता है कि वाई दे बिहेव लाइक दैट, द वे दे बिहेव, और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और व्हाट कैन मेक देम चेंज. अगर आप सिर्फ उनको, खास तौर पर जैसे टाइम बीतता जा रहा है, दे आर मोर इवॉल्व्ड, ये हम लोगों को मानना ही पड़ेगा एज अ पेरेंट. हमारे बच्चे हमेशा, मतलब हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा और हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बिकॉज वी हैव टेकन केयर ऑफ इट. सो दैट क्रेडिट गोज टू अस. Coming back to my story, so I had to talk to my son ki why this is happening, and as usual he was trying to refuse that. No, nothing is wrong with me, I am trying my best, I am doing it well, and he was actually defending his marks that it is good enough, which was not. So it was a difficult conversation, and I'm sure that if I just don't want him to see this video because he will not be very happy, but the truth is truth. So there was very intense session, and I was talking to him not as his mother, I was talking to him as a counselor and coach. I knew that what I am doing. So थोड़ा सा रोना धोना भी हुआ, not मेरी तरफ से, because अगर I would have done that रोना धोना, then उसका वो gravity उसकी चली जाती है. So I maintained my calm and composure because that was the requirement, that when I'm talking to a child, a teenager, I have to do that. उसकी तरफ से हुआ, and I was absolutely calm, and that मेरी जो calmness थी, that made him think कि I am very serious about it. I didn't shout or scream, I just persisted in the occasion, on that opportunity, because it was an opportunity that I was talking to him. So that made me realize, and things changed after that. I'm gladly I can share that things changed for better. It was very intense, and at the end of it I was feeling like, did I do the right thing? Should I have consulted someone else? लगा था, I will be very honest. लेकिन now when I think back, अच्छा ही हुआ कि it was a good test for me also. How can I persist and survive? बहुत मुश्किल था. It was pretty intense for me, and at the end of it, the results were good. He did do really well. He scored plus 20 marks in that particular subject, and not only that, during summer vacation I observed him that he was on his own putting the efforts. So that made it worthwhile. कि चलो अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. So it was that. Now I started thinking, उसके बाद कई बच्चे मेरे पास और भी आए,
कोचिंग की वजह से, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनसे बात नहीं कर पाते हैं, एंड विच इज़ वेरी कॉमन। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। अगर मेरे बेटे ने भी मेरी नहीं सुनी होती तो आई वुड हैव प्रॉब्ली रीच्ड आउट टू समवन, क्योंकि आप अपनी आंखों से अपने बच्चे को बिगड़ता हुआ तो नहीं देख सकते, राइट? सो व्हाट आई डिड वाज, व्हेन आई टॉक टू अदर चिल्ड्रन, I thought about my own experience and then I realized कि होता ये है कि जब हम अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो हमारी खुद की हिस्ट्री होती है। अगर हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद नहीं है तो कहीं ना कहीं वो होती तो है और हम लोग उससे परेशान हो जाते हैं। और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चूंकि हम लोग खुद ही परेशान रहते हैं, खुद ही उस समय एंग्शियस रहते हैं और वो पुरानी यादें हमें परेशान करती हैं, तो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द प्रॉब्लम, वी कनेक्ट टू द इमोशन। मतलब गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जाना हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब हमारा जो एम होना चाहिए वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने का होना चाहिए, ना कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम मेहनत क्यों नहीं करते, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये नहीं है। प्रॉब्लम है, जैसे मेरे बच्चे के केस में था, वाई यू आर नॉट एबल टू फोकस and why the result is not in accordance to that. अगर if you are putting effort, तो आपको बिल्कुल facts पे बात करना चाहिए, and it is very difficult, क्योंकि बच्चा जो है they know you and you know them and there is a strong emotional attachment, और वो emotions जो है ना वो surface पे आ जाते हैं। तो हमें एक बहुत ही clear boundary रखनी होती है when you are talking to your child, that why it is important, especially if the child is very smart, which is also very common nowadays. हर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। आपने कभी सुना है किसी के बारे में कहते हुए कि मेरा बच्चा बड़ा एवरेज सा है, बहुत इंटेलिजेंट है? सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। इवन माई डॉटर हु हैज ऑटिज्म, शी इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। सो स्मार्टनेस का रिलेशन कोई भी अच्छे बिहेवियर से नहीं है। बिहेवियर का अच्छा होना, सही होना, उसका रियलाइजेशन है कि जैसे ही आप रियलाइज करते हैं कि ओके, तो आपको वो चीज अपने बच्चे को रियलाइज करानी है, क्योंकि हर कोई अब मजे में जीना चाहता है। आपने देखा है कई एडल्ट्स जो हैं वो सही नहीं जा रहे, बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। तो आप यही सोच के देखिए कि जो टीनेजर्स हैं, जो अभी बिल्कुल हार्मोन्स उनके अंदर भर रहे हैं और नई नई एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उनके अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ों को उनके फैक्ट पर लें, सरफेस पर ना लें, रियलिटी पर लें कि ये जो मेरा जो एक्शन है जिसमें मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ये एक्शन मुझे कहाँ लेके जा सकता है। मैं अगर पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। अगर ये बच्चे को रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो आपको वो रियलाइज कराना है। तो बात बच्चों से, दो चीज़ों का ख्याल रखिए अगर आप बच्चों से बात कर रहे हैं तो, एज अ पेरेंट, क्योंकि आप सबसे अच्छा कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। एक तो ये है कि आप बाउंड्रीज बहुत क्लियर रखिए कि आप बात कर क्या रहे हैं जब आप कोई इस तरह के डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करने होते हैं। सो टॉक टू देम कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट द पेरेंट एट दैट टाइम, यू आर अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू हेल्प योर चाइल्ड। आपको इस कैपेसिटी में बात करनी है। दूसरा तो ये है कि बच्चे को पता होना, आप सरफेस को टच मत करिए, आप इमोशंस को टच मत करिए, आप फैक्ट्स पे जाइए कि ये ऐसा दिख रहा है, ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो हाउ वी कैन करेक्ट इट, एंड बी सपोर्टिव एंड काइंड। अगर बच्चे का टोन हाई हो रहा है, बच्चे का पिच हाई हो रहा है, अगर बच्चा गुस्सा हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि ही और शी इज इन स्पॉटलाइट, उसका जायज है। लेकिन आप इसका ख्याल रखिए कि आप हाइपर मत होइए। आपको अपना टोन डाउन रखना पड़ेगा, अपने पिच को कंट्रोल में रखना पड़ेगा व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद द चाइल्ड। अगर आप ऐसा कर सकते हैं देन यू कैन सक्सेसफुली टॉक टू योर चाइल्ड। सो दैट वाज इट, आई विल कम बैक टू इट। Thank you for watching and please subscribe my channel for more such videos.